Hello, my dear students. Today we will discuss the important issues from science and technology and defense section. We will be dealing with this particular period, that is 1st to 7th of March. So let's jump on to the contents. The contents we will discuss are genetic modified organisms, asteroids, PSLV C51, Ares Devasthal faint object spectrograph and camera, Trojan horse, red rice, and the first project to map the genomes in the Indian Ocean. This is a very important project. We will discuss it. Then we will discuss the solid fuel ducted ramjet technology, which is recently developed by DRDO. We will discuss the equine herpes virus, and this topic will be available in the PDF. You can go to the next day's official website and you can download this from the PDF there, and you can read it further. In the defense, we have these two topics only, that Surya Kiran aerobatic team and X desert exercise desert flag 6. So let's jump on to the first topic of science and technology. So it is the topic of genetically modified organisms. Recently, FASI issued an order to set up permissible limit for adventitious presence of GMOs at 1%. So there are very important concepts which are included in that. So first is, what is this adventitious presence? So adventitious presence means that unintentional presence. So even if a crop is not a GM crop, suppose it is a normal crop, even then if some amount of GM is present in that crop by unintentionally, so that is called as adventitious presence. So FASI has said that up to 1% of unintentional GM can be present in non-GM crops also. So this is an important development in this particular field. Earlier there was no such guidelines, and this created a problem because people were not aware that how much amount of GM is permissible in non-GM crops also. ठीक है. ऐसे ही अगस्त 2020 में FASI has issued an order that 24 crops, food crops in the country would need this particular tag, that is non-GM origin and GM free certificate. So these are the 24 crops which were issued by the FASI, and they should be of the non-GM origin. Their origin should not be GM crops, and they should be absolutely free from the GM. Now there are one important many concepts about genetically modified organisms which can be important. So basically, what are genetically modified organisms? They are organisms in which there has been some kind of genetic modification which has been done. ठीक है. तो उनके जीन्स को, उनके डीएनए को अगर मॉडिफाई कर दिया है तो उसको हम लोग जीएमओ बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. अब हम लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वी वांट टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन स्पेसिफिक ट्रेड्स in that particular organism. For example, suppose GM cotton is there. Now this cotton crop is being attacked by the pest which is called pink bollworm. ये बोलवर्म इसको अटैक करता है बार बार. तो अगर हम लोग इसमें कुछ ऐसा जीन डाल दें कि ये जो क्रॉप है इस बोलवर्म को रजिस्ट कर सके, बेसिकली इफ द बोलवर्म कम्स एंड ईट्स दिस कॉटन, देन द बोलवर्म डाइज. अगर हम कुछ ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें कॉटन के अंदर, तो दैट कॉटन विल बिकम रेजिस्टेंट टू द पिंक बोलवर्म. सो दिस हैज एक्चुअली व्हाट इज बीइंग डन इन द कॉटन वाला बीटी कॉटन. ठीक है. तो इसीलिए हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, बिकॉज वी वांट टू ऐड सर्टेन ट्रेट्स इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. फॉर एग्जांपल, जीएम क्रॉप्स कैन बी डिजाइंड, जेनेटिकली डिजाइंड टू बी ड्रॉट रेजिस्टेंट, टू बी रेजिस्टेंट ऑफ द पेस्ट, है ना, टू बी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट एंड टू बी रेजिस्टेंट टू डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस. एनवायरमेंटल स्ट्रेस का मतलब है कि जैसे हेल स्टॉर्म या फिर कोल्ड वेदर हो गया, या फिर एक बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चला गया, तो उन स्ट्रेस से भी वो रेजिस्टेंस बना सकते हैं इफ़ वी डू सर्टेन जेनेटिक मॉडिफिकेशन. बट इसके डिसएडवांटेज भी हैं. इसकी वजह से जीएम इतना इंडिया में पॉपुलर नहीं हुआ है. डिसएडवांटेज क्या है कि द जीएम क्रॉप्स कैन हैव अनफोर्सीन रिजल्ट्स. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जीएम क्रॉप्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन द एनवायरनमेंट. इफ अगर उन लिविंग क्रॉप्स का कोई साइड इफेक्ट हुआ, मान लीजिए कि वो क्रॉप्स, मान लीजिए कॉटन है, तो कॉटन तो वी डू नॉट कंज्यूम कॉटन डायरेक्टली, है ना, बट सपोज देर इज सम अदर फूड क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल बीटी ब्रिंजल. ठीक है. तो वी ईट द ब्रिंजल डायरेक्टली. ठीक.
तो अगर उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारी हेल्थ इम्पैक्ट हो गई या लॉन्ग टर्म में हमें कोई बीमारी हो सकती है, डिजीज वगैरह, तो वो हार्मफुल रहेगा। ऐसे ही अगर वो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए की वजह से एनवायरनमेंट पे कोई साइड इफेक्ट पड़ा, मान लीजिए कि वहाँ के जो बीज हैं या इंसेक्ट्स हैं वो लोग मर गए, या फिर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कम्प्लीटली डिग्रेड हो गया उस जीएम क्रॉप की वजह से, तो ये एक एनवायरमेंटल डिजास्टर हो जाएगा। तो इसीलिए जनरली जो जीएम क्रॉप्स को अपोज करते हैं वो यही बोलते हैं कि जीएम क्रॉप्स के बहुत ज़्यादा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज हैं। तो सबसे बड़ा अपोजिशन जीएम क्रॉप्स का यही है कि वो अभी उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अभी तक क्लियर कट नहीं पता लोगों को। इसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन होती है और कंप्लीटली फील्ड ट्रायल्स होते हैं, फील्ड ट्रायल्स। तो जब फील्ड ट्रायल्स पे ये 100% सेफ निकलता है वो, तो तभी किसी पर्टिकुलर क्रॉप को हम लोग अप्रूवल देते हैं। ठीक, तो ये हमारी जो कहानी है जीएम की। ठीक है, वो एडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए कि भाई प्रोडक्शन बढ़ सकती है फार्मर्स की, डेफिनेटली पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड जो है उस वो रेजिस्टेंस बन सकते हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को बढ़ा फीड करने के लिए जीएम कैन बी अ वे फॉरवर्ड। ठीक है, बट इसके डिसएडवांटेज भी हमने डिस्कस कर लिए कि अल्टीमेटली ये नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर जीएम क्रॉप बहुत ही अच्छा हो तो अल्टीमेटली एवरीवन विल ग्रो दैट पर्टिकुलर क्रॉप ओनली। जैसे मान लीजिए जीएम कॉटन है अपना, बीटी कॉटन। ठीक है, तो मान लीजिए बहुत अच्छा है तो सारे लोग वही उगाएंगे, तो बाकी जो वैरायटीज ऑफ कॉटन है, बाकी वैरायटीज ऑफ कॉटन दैट विल बी नेग्लेक्टेड। तो उसकी वजह से जो नेचुरल ऑर्डर है चीज़ों का, पूरा उसकी कॉटन की जो जेनेटिक रिसोर्स है वो खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली ओनली वन कॉटन विल बी लेफ्ट, दैट इज द जीएम कॉटन। और एक और इसका जो है डिसएडवांटेज है या फिर चैलेंज जो होता है जीएम क्रॉप का कि अगर हम लोग मेन पर्पस जीएम क्रॉप्स का, जो जीएम के प्रोपोनेंट हैं दे आर सेइंग कि जो मेन पर्पस इज टू इंक्रीज द यील्ड, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उसका मेन पर्पस है। बट जो अपोनेंट्स होते हैं वो ये भी बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी कैन बी रेज्ड बाय अदर मीन्स फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग, या फिर कोई अच्छे तरीके के मैन्योर फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करके, है ना, या फिर जो इंटर क्रॉपिंग वगैरह से हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग से, या फिर रोटेशन ऑफ द क्रॉप से। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल वेज इन विच द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज ऑन अ पर्टिकुलर सॉइल। तो हमारी प्रोडक्टिविटी इसलिए कम है क्योंकि हम लोग एक्सेसिवली फर्टिलाइजर्स के ऊपर रिलाई करते हैं और हमारे को टाइमली इनपुट्स नहीं मिलते, जैसे कि वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस, तो वो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। तो यही जो है हमेशा डिबेट चलती रहती है बिटवीन द प्रोपोनेंट्स ऑफ द जीएम एंड द अपोनेंट्स ऑफ द जीएम की जीएम क्रॉप्स सस्टेनेबल है कि नहीं है। ठीक है, इंडिया में सिर्फ एक ही जीएम अभी तक है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटी कॉटन, उसके अलावा कोई जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में अलाउड नहीं है। तो जीएम बीटी कॉटन के हमारे पास 3 वेरिएंट्स है। तो फर्स्ट जो 2 वेरिएंट है उसमें ये 2 जीन्स ऐड करे थे हमने, क्राई 1 AB और क्राई 2 BC। और वो कहाँ से, ये जीन कहाँ से है, 2 जीन हमने ऐड किए थे कॉटन में, क्राई 1 AB और क्राई 2 BC। ये जीन कहाँ से है, इस सॉइल बैक्टीरिया से, दैट इज बैसिलस thuringiensis, ये सॉइल बैक्टीरिया है। तो ये दोनों जो जीन है ये इसको क्या बनाते हैं, ये इसको बनाते हैं रेजिस्टेंट टू पिंक बोलवर्म, रेजिस्टेंट टू पिंक बोलवर्म। तो ये क्यों बनाते हैं ऐसा रेजिस्टेंट, क्यों, ये एक ऐसा जीन है जिसको हम लोग जब कॉटन में ऐड करते हैं तो उसकी वजह से कॉटन का नेचर चेंज हो जाता है। जैसे ही बोलवर्म कॉटन को खाएगा वैसे ही बोलवर्म के पेट में एक पॉइजन क्रिएट हो जाएगा एंड द बोलवर्म विल डाई। ठीक है, तो इसकी ये जो है कॉटन का नेचर चेंज कर दिया हमने बाय इंट्रोड्यूसिंग दीज 2 जीन्स फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरिया। तो बोलवर्म इज किल्ड बाय ईटिंग दिस क्रॉप। ऐसे ही एक और थर्ड वेरिएंट है हमारे पास बीटी कॉटन का, दैट इज कॉल्ड HTBT, मतलब हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन, हर्बिसाइड टॉलरेंट। तो इसमें हमने एक और जीन डाला है, दैट इज दिस वन, ये जीन डाला है हमने CP4 EPS PS। तो ये जीन भी एक सॉइल बैक्टीरिया से आया है, सॉइल बैक्टीरिया
एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिस, और इसकी वजह से क्या है, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट हो जाता है, हर्बिसाइड। तो अब क्या है, हम लोग जितना मर्जी हर्बिसाइड डालें, कॉटन को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग जैसे मान लीजिए हमारे क्रॉप्स हैं यहाँ पे और बहुत सारे हर्ब्स उग गए हैं, तो हम लोग बहुत सारा हर्बिसाइड थ्रो कर सकते हैं, ये सारे हर्ब्स किल हो जाएंगे और ये कॉटन क्रॉप ऐसे ही मेंटेन रहेगा। तो इससे फायदा क्या है कि वी कैन किल दी हर्ब्स विदाउट इफेक्टिंग दी कॉटन क्रॉप्स, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, बट वही है, इसका डिसएडवांटेज भी है कि क्या पता फार्मर्स बहुत सारा हर्बिसाइड यूज करने लगे अल्टीमेटली, क्योंकि उनको ये है कि कॉटन तो इफेक्ट हो नहीं रहा है, तो हर्बिसाइड का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि पूरा नेचुरल सिस्टम जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो ये सारे जो है प्रोज एंड कॉन्स हैं जीएम के, और जो फैक्चुअल चीज़ थी प्रीलिम्स ओरिएंटेड वो भी हमने डिस्कस कर ली है। अब दो तीन चीज़ें और देख लेते हैं कि एक तो बीटी ब्रिंजल इंडिया में है नहीं अभी भी, ठीक है, परमिशन नहीं मिली है उसको। बीटी ब्रिंजल में एक ऐसा जीन डाला गया है सॉइल बैक्टीरिया से जो कि उसको फ्रूट एंड शूट बोरर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं इस पे कि इंडिया में लीगल पोजीशन क्या है जीएम क्रॉप्स को लेकर। तो इंडिया में एक बॉडी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जीईएसी। दिस इज द एपेक्स बॉडी, ये सबसे बड़ी बॉडी है जो अप्रूवल देती है फील्ड ट्रायल्स के लिए या फिर कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कहीं इंट्रोड्यूस करना है। तो दिस इज द बॉडी विच हुज अप्रूवल हैज टू बी सॉट। ये किसके अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर है, बट नहीं, ये जो सीधा सीधा है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर है। ये याद रखने की जरूरत है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है प्रीलिम्स में। फिर ये इसके फंक्शंस दे रखे हैं, और अगर आप किसी अनअप्रूव्ड जीएम वैरायटी को उगा रहे हैं तो यू कैन बी गिवन अ जेल टर्म ऑफ 5 years और फाइन लग सकता है आपके ऊपर 1 लाख तक का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। ठीक है, दिस इज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, तो ये एक बॉडी है। एक और बॉडी है जो कि फसाई है, जिसने कि अभी करंट रेगुलेशन जो है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिलीज करी है। तो फसाई जो है दैट वाज क्रिएटेड अंडर द फसाई एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। और जो फूड मटेरियल है ना, उसको अप्रूवल देने का काम करती है ये बॉडी। जो फूड वगैरह है, जो डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स फूड खाते हैं, तो वो अप्रूवल जो होता है ये देती है बॉडी। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी और जीईएसी का फंक्शंस ओवरलैप कर रहा है व्हेन वी कंसिडर फूड आइटम्स, फूड क्रॉप से फूड आइटम्स की बात जब हम करें तो यहाँ पे ओवरलैपिंग फंक्शन है। बट इसमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन है कि जो फसाई है वो फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में रेगुलेशन निकालती है, और जीईएसी एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर कोई भी एग्रीकल्चर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको हम लोग ग्रो करना चाह रहे हैं या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उसके लिए जीईएसी परमिशन देती है। तो ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के ऊपर कुछ फैक्ट्स हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के थ्रू बनी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है, और वो वाली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है। इसका बेसिकली मैंडेट क्या है कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड सारी डिसीजंस ये लेगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट एस्ट्रॉइड्स। तो रिसेंटली एक एस्ट्रॉइड न्यूज़ में था, तो उसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि एस्ट्रॉइड होते क्या है। कि ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन को ऑर्बिट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया क्या है, दे आर ऑब्जेक्ट्स विच आर स्मॉलर देन प्लैनेट्स एंड दे ऑर्बिट द सन। ठीक है, तो ये होते हैं एस्ट्रॉइड्स। अब ये एस्ट्रॉइड्स बने कब, जब हमारा सोलर सिस्टम बना 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो कुछ तो सोलर सिस्टम में जो जो रॉक्स थी कुछ तो कंसोलिडेट होकर प्लैनेट्स बन गई, है ना। कुछ गैसेस जो है वो कंसोलिडेट होकर हमारा सन बन गई। कुछ गैसेस कंसोलिडेट होकर आउटर प्लैनेट्स बन गई जैसे कि जुपिटर, सैटर्न एक्सेट्रा। बट कुछ रॉक्स अभी भी बच गई और वो प्लैनेट्स में मर्ज नहीं हो पाई। तो वो जो रॉक्स हैं, जो लेफ्ट ओवर्स हैं, दैट आर कॉल्ड एज एस्ट्रॉइड। ठीक है, तो ये 4.6 बिलियन ईयर्स पुराने ही हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि भाई एस्ट्रॉइड मिलते कहाँ हैं और एस्ट्रॉइड का टाइप क्या है। टाइप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, फिर भी फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इट इज गिवन कि सी टाइप एस्ट्रॉइड में आपके क्ले और सिलिकेट ज़्यादा होते हैं, और एस टाइप एस्ट्रॉइड में आपके स्टोन्स ज़्यादा होते हैं, सिलिकेट मटेरियल्स, और एम टाइप में आपके आयरन और निकल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आप ये देखो कि एस्ट्रॉइड मिलते का है। उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। देखो, एस्ट्रॉइड्स होते हैं रॉकी बॉडी विच आर स्मॉलर देन द प्लैनेट एंड ऑर्बिट द सन, है ना। उसके अलावा कुछ और फ्रैगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, दे आर ऑफ रॉक्स विच आर
इन द स्पेस, दे आर कॉल्ड एज मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड होते हैं रॉकी और मेटालिक फ्रैगमेंट्स ऑफ द एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड के फ्रैगमेंट होते हैं ये, है ना। इफ अ मीटियोराइट मेक्स इट्स वे टुवर्ड्स दी अर्थ, जब वो अर्थ की तरफ आएगा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही उसको एक अपोजिशन फेस करना पड़ेगा एंड इट विल फेस फ्रिक्शन बाय द एटमॉस्फेयर, उस फ्रिक्शन की वजह से जलने लग जाएगा, इट विल स्टार्ट बर्निंग। तो इसको बोलते हैं मीटियोर। इट इज अ स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन द मीटियोराइड हीट्स अप इन द एटमॉस्फेयर। और अगर इतनी हीट के बाद भी वो मीटियोर बच जाता है एंड अल्टीमेटली इट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इट इज नोन एज मीटियोराइट। ठीक है, टी वाला मीटियोराइट। ठीक है, इफ इट मैनेजेस टू रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इट इज कॉल्ड एज मीटियोराइट। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटिंग टू एस्ट्रॉइड्स। और अब इसमें देखो एस्ट्रॉइड मिलते कहाँ हैं। एस्ट्रॉइड्स आर जनरली फाउंड बिटवीन अ बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसको हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी हमारे सारे एस्ट्रॉइड मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सोलर सिस्टम के बाहर चले जाएं, आउटसाइड द नेपट्यून, प्लूटो के भी बाहर चले जाएं, तो देर इज ऑल्सो अनदर बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड विच इज नोन एज काइपर बेल्ट। ठीक है, तो ये हमारी सोलर सिस्टम है, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, ये हमारी फेवरेट अर्थ, और उसके बाद मार्स, फिर जुपिटर। और यहाँ पे आपके मार्स जुपिटर के बीच में है एस्ट्रॉइड बेल्ट जहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड मिलते हैं। और अगर हम सोलर सिस्टम के और बाहर चले जाएं तो काइपर बेल्ट है हमारी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं। तो जनरली हम लोग जो एस्ट्रॉइड ऑब्जर्व करते हैं अर्थ पे वो जनरली एस्ट्रॉइड बेल्ट के ही होते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत पास है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PSLV C51 एमेजोनिया 1 मिशन। अब इंडिया ने PSLV सक्सेसफुली लॉन्च किया, PSLV C51 एमेजोनिया 1 मिशन। इसमें 18 को पैसेंजर सैटेलाइट थी और ये लॉन्च कहाँ से हुआ, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट देखो ये है कि दिस इज द फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL का फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन है। तो ये NSIL के बारे में पूछ सकता है। तो NSIL is basically a new company which is created and this is the commercial arm of ISRO। ये कमर्शियल आर्म है इसरो की। ठीक है, ऐसे ही एंट्रिक्स भी जो है वो भी एक कमर्शियल आर्म है इसरो की। ठीक, और NSIL एक नई कंपनी बनाई गई है टू एक्ट एज अ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है NSIL का, ये जो इंडस्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करेगी और वहाँ से प्रोजेक्ट्स लेके आएगी ताकि इसरो के प्रोडक्ट्स को आप कमर्शियली वायबल बना के उनसे पैसा कमा सके। अल्टीमेटली दिस इज द एम। तो इसरो के जो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जैसे PSLV है, तो PSLV इसरो का प्रोडक्ट है। अब इसके ऊपर अगर हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो इसरो कैन अर्न सम रेवेन्यू ऑन दिस। ठीक है, तो सच इज द वर्क ऑफ द NSIL दैट द टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट ऑफ द इसरो शुड बी मेड commercially viable, it can be sold to the market so that ISRO can make some money out of it। तो ये इसका पर्पस है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, अब अमेजोनिया 1 जो है ये एक मिशन था जिसमें 637 kg के ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करी गई। ठीक है, इट इज पावर्ड बाय लिथियम आयन बैटरी एंड 2 सोलर एरेज। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि देखो इंडिया जो है वो अलग अलग कंट्रीज की सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहा है। ठीक, यूएस की देखो कितनी सैटेलाइट है, 13 सैटेलाइट्स ऑन द यूएस वर लॉन्च बाय इंडिया। तो इसका मतलब समझने का क्या है, 5 सैटेलाइट जो है वो इंडिया की खुद है, जो कि सतीश धवन सैटेलाइट है, एक यूनिटी सैट है। तो इसमें देखो ये आइडिया क्या है कि इंडिया नाउ हैज प्रूवन इट्स ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट के लॉन्च में हमने अपना ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव कर दिया है। अब सारा जो वर्ल्ड है उसकी आइज रहती है कि इंडिया कब लॉन्च कर रहा है और हम कब अपनी सैटेलाइट्स इंडिया के थ्रू लॉन्च करवा सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि इंडिया के थ्रू सैटेलाइट लॉन्च करना चीपर पड़ता है, चीपर। ठीक है, चीप है, सस्ता है, हम लोग सस्ते में लॉन्च कर देते हैं और रिलायबल भी है, हमने अपनी रिलायबिलिटी शो कर दी है ना। हमारा PSLV तो मोस्ट रिलायबल व्हीकल्स हो गया अभी तक। तो इसलिए इंडिया जो है एक नई इंडस्ट्री में अपनी स्पेस बना रहा है जिसको स्पेस लॉन्च इंडस्ट्री है जो। ठीक है, तो अगर हम धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स को भी एनकरेज करें इस इंडस्ट्री में आने के लिए तो अल्टीमेटली होगा क्या कि इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो जाएगी विच इज रिलेटेड टू द स्पेस और इंडिया कैन बिकम द स्पेस सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो
टारगेट हमारा यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड करें स्पेस इंडस्ट्री में, और इसरो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शलाइजेशन करे अपने प्रोजेक्ट की, ताकि इसरो के पास भी पैसा आए और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके। अब इसमें प्रीलिम्स के लिए कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पीएसएलवी के बारे में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो पीएसएलवी इज द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस। ठीक है, ये दो फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और पीएसएलवी के अंदर 4 स्टेज होते हैं, 4। तो फर्स्ट स्टेज इज ऑलवेज सॉलिड, सॉलिड, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो 4 स्टेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये फोर्थ। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है सॉलिड। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा चाहिए थ्रस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा पावर चाहिए एकदम से, ताकि आप रॉकेट को उठा सको। तो सॉलिड फ्यूल इसके लिए बेस्ट होता है। तो फर्स्ट होता है सॉलिड फ्यूल। इसमें ये एच टी पी बी फ्यूल यूज़ किया जाता है। सेकेंड स्टेज इज ऑलवेज लिक्विड, लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए कंट्रोल। आपको चाहिए, आपको डायरेक्शन सेट करना है रॉकेट का कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको उसकी स्पीड मेंटेन करनी है ताकि ऑर्बिट में पहुंच सके। तो आपको कंट्रोल चाहिए, एंड लिक्विड फ्यूल इज बेस्ट फॉर कंट्रोल बिकॉज यू कैन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फ्यूल विच इज एंटरिंग द इंजन। तो सेकंड स्टेज होता है लिक्विड, एंड दिस इज फ्यूल्ड बाय द विकास इंजन। विकास इंजन इज डेवलप्ड बाय इंडिया। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर थर्ड स्टेज आपका जो फिर अगेन सॉलिड है, और फोर्थ स्टेज फिर से लिक्विड इंजन है। तो इसमें सॉलिड लिक्विड ऐसे करके 4 स्टेजेस हैं। अब हमारा जो चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च हुआ था, वो भी पीएसएलवी के थ्रू ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इसलिए पीएसएलवी हमारा 39 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल मिशन लॉन्च कर चुका है बाय 2017, और ये 1994 में स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल बन गया है हमारा पीएसएलवी आज की डेट में। अब ये देखो जीएसएलवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये जीएसएलवी मार्क 3 के बारे में है। इट इज़ द हैवीएस्ट रॉकेट एवर मेड बाय इसरो। ये 4 टन ऑफ सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। यूपीएससी कभी कभी इस फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और इट इज केपेबल ऑफ प्लेसिंग 8 टन्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। अगर आपको लो अर्थ ऑर्बिट में डालना है तो 8 टन डाल सकता है, अगर आपको जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में डालना है तो 4 टन डाल सकता है। इट इज सक्सेसफुली लॉन्च GSAT-29, और बहुत सारी हैवी हैवी सैटेलाइट्स इसने लॉन्च कर दी है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है ये 3 स्टेज का लॉन्चर होता है। दिस इज ओनली 3 स्टेज। तो इसमें लोअर स्टेज जो होती है आपकी, फर्स्ट स्टेज होती है सॉलिड, हमेशा मैंने बताया फर्स्ट स्टेज इज सॉलिड। ठीक है, इसमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं। सेकंड स्टेज इज लिक्विड, इट इज पावर्ड बाय दिस UDMH एंड N2O4। ठीक है, और ये विकास इंजन से ही पावर होती है। थर्ड स्टेज इज द क्रायोजेनिक अपर स्टेज। क्रायोजेनिक में मतलब हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन वी यूज इट एंड एट अ वेरी लो टेम्परेचर। तो इसमें जो है इंडिया का क्रायोजेनिक इंजन जो है CE20 यूज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा जीएसएलवी के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि एरीज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा। दिस इज अ न्यू कैमरा विच इज इन न्यूज, और इन्होंने इंडिजिनियसली डेवलप किया है दिस न्यू कैमरा को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, बस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि ये कैमरा क्या है, इस किसने डेवलप किया है ऐसे। ठीक, इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट इन नैनीताल। ठीक है, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का, और ये लार्जेस्ट है अपने अपने टाइप का, और एग्जिस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रो जितने भी स्पेक्ट्रोग्राफ्स हैं इंडिया में, उसमें सबसे लार्जेस्ट है अभी ये। ठीक है, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स के लिए, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मेंस के लिए कुछ इसमें एनालिसिस है नहीं। आत्मनिर्भर, ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग खुद ही अपने सैटेलाइट स्पेक्ट्रोग्राफ वगैरह खुद ही डेवलप कर रहे हैं, ताकि हम लोग एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में भी आत्मनिर्भर या फिर सेल्फ रिलायंट बन सके। अब इस टेलीस्कोप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये कस्टम बिल्ट है। 3.6 मीटर ऑप्टिकल न्यू टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप है इसके अंदर। ठीक, फिर ये लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन इंडिया है। और ये कहाँ सिचुएटेड है, ये नैनीताल में सिचुएटेड है ना, नैनीताल में। और ये ऑप्टिकल वेवलेंथ में ऑब्जर्वेशन करती है, मतलब कि ये विजिबल लाइट में वेवलेंथ करती है। दैट इज 700 to 400 नैनोमीटर के वेवलेंथ में ये ऑब्जर्वेशन करती है। ठीक है,
तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ट्रोजन हॉर्स। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ मैलिशियस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दैट इज डिस्गाइज्ड एज अ बेनिफिशियल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक मेलवेयर है। मेलवेयर क्या होता है, ऐसे वायरस या सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं, दे आर हार्मफुल फॉर द कंप्यूटर। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के मेलवेयर होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब ये ट्रोजन के बारे में आप पढ़ लो कि क्या क्या कर सकता है। बेसिकली अगर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया तो आपका कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस किसी दूसरे पर्सन को मिल सकता है। आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो चुरा सकते हैं और आपके कंप्यूटर को कम्प्लीटली ओवरटेक कर सकते हैं वो। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है कि मेलवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो, मेलवेयर का अल्टीमेट एम क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं। तो पहला तो आपको पता ही होगा, वायरस। आपने बहुत बार सुना होगा वायरस आ गया कंप्यूटर पे। तो ये वायरस क्या है, ये कंटेजियस पीस ऑफ कोड है। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर वायरस किसी कंप्यूटर में आ गया तो वो उसके सारे पार्ट्स को इफेक्ट कर देगा, दूसरे सॉफ्टवेयर को भी इफेक्ट कर देगा। अगर एक पर्टिकुलर ड्राइव में आ गया तो वो दूसरी ड्राइव में भी फैल जाएगा। तो वायरस इसलिए उसका नाम है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंटेजियस है और वो स्प्रेड करता है, इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर वेरी क्विकली। ठीक है, एडवेयर क्या होता है, ये सारे ही आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। एडवेयर क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर फिर जो आपको ऐड दिखाता रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये आपके कंप्यूटर को हार्म करे, बट ये आपके कंप्यूटर में ऐड दिखाता रहेगा, बार बार आपको कोई पर्टिकुलर चीज की एडवर्टीजमेंट दिखाता रहेगा, तो हो सकता है उससे आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए। स्पाईवेयर क्या है कि ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर पे है, ये ना कुछ स्लो करेगा ना कुछ करेगा, बस ये आपके कंप्यूटर पे पड़ा रहेगा। जो भी आप कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो वो सारी की सारी कहीं और भेज देगा, ताकि आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे लोग देख सके। तो स्पाईवेयर तो पता भी नहीं चलेगा आपको कंप्यूटर पे है। वॉर्म्स क्या होता है, वॉर्म क्या होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पे अगर आ गया तो आपके कंप्यूटर का सारा डेटा जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, डेटा खा जाएगा। इट वर्क्स टू ईट अप ऑल द सिस्टम ऑपरेटिंग फाइल्स, सारी सिस्टम ऑपरेटिंग फाइल्स को खा जाता है ये। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ट्रोजन, ट्रोजन ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि अच्छे सॉफ्टवेयर है, जैसे दे आर डिस्गाइज्ड एज अ गुड सॉफ्टवेयर बट अल्टीमेटली दे आर हार्मफुल मेलवेयर। ट्रोजन ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको लगेगा कि अच्छे सॉफ्टवेयर है ना, यूजफुल सॉफ्टवेयर है, बट अल्टीमेटली देयर विल बी मेलवेयर्स। दे आर डिस्गाइज्ड, दे मे बी प्रोग्राम टू स्टील। वो कर तो कुछ भी सकते हैं कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं, बट वो डिस्गाइज फॉर्म में आएंगे। आपको कहेंगे अच्छा ये सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल करो, बट अल्टीमेटली उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक छोटा सा कोड होगा जो कि हार्मफुल होगा। रैंसमवेयर वो होता है जो आपके कंप्यूटर पे अगर एक बार आ गया तो आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा और आपसे पैसा मांगेगा कि जब तक आप पैसा नहीं दोगे, है ना, जब तक आप पैसे नहीं दोगे, उसको पे नहीं करोगे, तब तक वो आपके कंप्यूटर में से हटेगा नहीं। ठीक है, तो ये होता है रैंसमवेयर की किसी से रैंसम मांगनी है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर। अब हम आते हैं रेड राइस के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक। तो ये इंडिया ने फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस को यूएस पे शिफ्ट, यूएस भेजा है। तो ये ब्रह्मपुत्र वैली में उगता है। दिस रेड राइस इज ग्रोन इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स। इट इज रेड बिकॉज इट इज रिच इन आयरन, देयरफॉर इट इज रेड। ठीक है, इसे भावधान भी बोलते हैं। और इसके अंदर एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन, जिसकी वजह से ये रेड कलर का होता है। अल्टीमेटली इट इज रिच इन आयरन, आयरन। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही टॉपिक है ये। और इससे इंसुलिन रेगुलेशन भी होती है। किसी को अगर डायबिटीज वगैरह है या फिर इंसुलिन की प्रॉब्लम है तो दिस राइस कैन हेल्प रेगुलेट द इंसुलिन लेवल इन द ब्लड। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द आयरन लेवल इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन वगैरह का लेवल बढ़ा सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू मैप जीनोम्स इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जीनोम की मैपिंग कर रहे हैं हम लोग। तो अभी ये कौन कर रहा है, CSIR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, दिस इज डूइंग दिस। तो ये क्या कर रहा है, एक तो जीनोम मैपिंग कर रहा है और एक प्रोटियोम मैपिंग कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जीनोम और प्रोटियोम क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आप डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पर्टिकुलर सेल और उसके अंदर ये है आपका न्यूक्लियस और यहाँ पे होता है DNA। ठीक है, तो सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस में ही DNA नहीं होता है, और भी बहुत जगह पे DNA होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है। ठीक है, अगर प्लांट सेल है तो आपके क्लोरोप्लास्ट में DNA होता है। तो जीनोम is the set of all genetic materials, is the set of all genetic materials present within the
विद इन एन ऑर्गेनिज्म ऑल जेनेटिक मटेरियल, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे के सारे का इकट्ठा करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे जीनोम। तो अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोम स्टोर कर लिया है तो यू नो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म। इफ यू आर एबल टू रीड द जीनोम ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म देन यू नो ईच एंड एवरी डिटेल, और उसके हर एक सेल में क्या क्या जेनेटिक कोड है सब आपको पता है। इसी तरीके से एक और जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है प्रोटियोम का। प्रोटियोम, तो प्रोटियोम जो है वो सेट ऑफ ऑल प्रोटीन्स है, सेट ऑफ ऑल प्रोटीन्स विच इज प्रेजेंट विच और कैन बी मेड बाय द जीन्स ऑफ द पर्टिकुलर organisms. Proteome is the entire set of proteins that is or can be expressed by the genome. ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा अल्टीमेटली कि जीन जो होते हैं वो उनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, तो जीन अल्टीमेटली मेक द प्रोटीन, है ना। तो जितने सारा सेट ऑफ प्रोटीन विच कैन बी मेड बाय द जीनोम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोटियोम। ठीक है, तो अगर आपने जीनोम और प्रोटियोम स्टडी कर लिया है किसी ऑर्गेनिज्म का तो आपको सब पता है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में कि क्या क्या प्रोटीन हो सकते हैं उसके पास, क्या क्या जेनेटिक मटेरियल हो सकता है उसके पास। ठीक है, तो ये अभी स्टडी कर रहे हैं हम लोग इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन में जितने ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं उनके जीनोम और प्रोटियोम को स्टडी करेंगे। सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को टारगेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से खत्म होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ईस्ट कोस्ट से स्टार्ट होगा और ये सब इन्फॉर्मेशन है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और सेंगर सीक्वेंसिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे प्रीलिम्स में क्या पूछ सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग किस चीज से रिलेटेड है, तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। सेंगर सीक्वेंसिंग टेक्निक किस चीज से रिलेटेड है, तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली न्यू टेक्निक्स है जिसकी वजह से जीनोम को हम लोग अच्छी तरह से सीक्वेंस कर सकते हैं फास्ट पेस पे। सीक्वेंसिंग क्या होती है, जीनोम की सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है कि आपने सारे जेनेटिक मटेरियल को पढ़ लिया है, रीड कर लिया है, और आपको पता है कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे है ना। पूरे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के लोकेशंस आपको सारी एग्जैक्टली पता है। तो ये सेंगर सीक्वेंसिंग टेक्निक एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नेम के बेस पे है जिनको दो बार नोबल प्राइज मिल चुका है, दो बार नोबल मिल चुका है फॉर हिज वर्क इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो इसलिए ये सेंगर सीक्वेंसिंग टेक्निक उनके नाम पे ही है। ठीक है, तो दीज आर बोथ बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। जीनोम के बारे में मैंने बता ही दिया कि होता क्या है कि इट इज द एंटायर सेट ऑफ जेनेटिक कोड विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए विच इंक्लूड ऑल इट्स जीन्स। जीनोम मैपिंग हमने प्रोजेक्ट, जीनोम मैपिंग का मतलब क्या है कि सारे जो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो आपको एग्जैक्टली आपने उसको रीड कर लिया है और आपके पास डेटाबेस पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें सारी लोकेशन आपको पता चल गई, कौन सा जीन कहाँ पे लोकेटेड है ना, ऑन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम एंड डिटरमाइन द लोकेशन एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन अदर जीन्स। मतलब बेसिकली आपको सारे जीन्स की रिलेटिव डिस्टेंस, लोकेशन वगैरह सब पता है। तो इसको बोलते हैं जीनोम मैपिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था दैट वाज स्टार्टेड इन 1990 एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 2003। और उसका टारगेट क्या था कि ह्यूमन के सारे जीनोम को पढ़ना है, ह्यूमन के जितना भी जीनोम है जेनेटिक मटेरियल है उसको सारे को पढ़ के डेटाबेस बनाना है उसका। तो अब हमने रीड तो कर लिया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का रीड पार्ट तो कंप्लीट हो गया है ना, इट वाज कंप्लीटेड इन 2003। तो ह्यूमन का सारा जेनेटिक मटेरियल अब हमको पता है। ठीक है, ऐसे ही जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट विच इज spearheaded by सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट बेंगलुरु एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये क्या है कि ये इंडिया के जीनोम का एक मैप डेटाबेस बनाएगा, ठीक है, इंडियंस का सिर्फ। ठीक है, और उसमें ये स्टडी करेगा कि किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल की वजह से कौन सी टाइप की डिजीज हो सकती है। डिजीज, तो जैसे हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कुछ पर्टिकुलर डिजीज हो सकती है, या फिर नॉर्थ इंडिया के लोगों को कुछ पर्टिकुलर डिजीज ज़्यादा आसानी से हो सकती है। तो दैट विल डिपेंड ऑन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का पर्पस है कि सारे इंडिया के जो लोग हैं उनका जेनेटिक मटेरियल का डेटाबेस बनाए और फिर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि किस जेनेटिक टाइप के लोगों को कौन सी डिजीज आसानी से हो सकती है, बेसिकली विच डिजीज आर दे प्रोन टू। और इससे हमारी पब्लिक हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, हमको पता लग जाएगा कि किस एरिया में कौन से डिजीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। ऐसे ही एक 100 के जीनोम एशिया प्रोजेक्ट है। तो ये सिंगापुर में एक यूनिवर्सिटी है उनके और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ चल रहा है। तो इसका एम है कि 100,000 एशियंस का जीनोम सीक्वेंस करना है जिसमें 50,000 इंडियंस भी होंगे। ठीक है,
तो 100,000 एशियंस का जीनोम सीक्वेंस करना है, इसमें 50,000 इंडियंस भी होंगे और 12 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। ये अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है चांदीपुर से। ठीक, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एयर टू एयर मिसाइल है जो कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट यूज करती है। तो अब इसमें समझने की चीज क्या है कि रामजेट टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब ये देखो, व्हेनेवर अ मिसाइल, ठीक है, जब भी एक मिसाइल को हम लोग लॉन्च करते हैं, जब भी एक मिसाइल को हम लोग लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर हमको चाहिए फ्यूल, है ना। तो फ्यूल आएगा तभी वो बर्न करेगा और अल्टीमेटली गैस विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस साइड एंड मिसाइल विल मूव फॉरवर्ड। नाउ फ्यूल को बर्न करने के लिए क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन सोर्स भी चाहिए, फ्यूल को ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जनरली ऑल द मिसाइल्स कैरी ऑक्सीडाइजर्स विद देम। तो इसमें फ्यूल भी होता है और ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन का सोर्स भी होता है, जिसकी वजह से द मिसाइल कैन बर्न द फ्यूल इजिली। तो उसकी वजह से फ्यूल बर्न करती है और वो आगे जाती है। अब रैमजेट में क्या है, रैमजेट में देयर इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। ओनली फ्यूल विल बी प्रेजेंट इन द मिसाइल एंड ऑक्सीजन विल बी टेकन बाय द एयर, फ्रॉम द एयर व्हेन द मिसाइल इज फ्लाइंग। जब मिसाइल फ्लाई हो रही होती है, जब मिसाइल उड़ रही है, तो जो एयर फ्लो हो रही है मिसाइल के चारों तरफ, उसी को अंदर यहाँ एब्जॉर्ब कर लेंगे, यहाँ से अंदर इनटेक कर लेंगे और उसी से ऑक्सीजन निकाल के फ्यूल को जला देंगे। ठीक है, तो ये समझे कि द रैमजेट टेक्नोलॉजी, है ना, डज नॉट नीड टू कैरी ऑक्सीडाइजर और ऑक्सीजन सोर्स अलॉन्ग विद द फ्यूल बिकॉज इट टेक्स द ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर while it is flying in the sky। तो ये है। अब इससे एडवांटेज क्या होगी, एडवांटेज होगी कि मिसाइल को ऑक्सीडाइजर नहीं ले जाना अपने साथ, तो उसका जो लोड है, फ्यूल का लोड है, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब मिसाइल क्या ले जा सकती है, ज़्यादा पे लोड ले जा सकती है। पे लोड मतलब ज़्यादा, अगर मिसाइल है तो बॉम्ब ले जाएगी ऑब्वियसली, तो ज़्यादा बड़ा बॉम्ब, ज़्यादा हैवी बॉम्ब मिसाइल कैन कैरी बिकॉज उसका ऑक्सीजन वाला लोड कम हो गया है। ठीक है, और अगर चलो मान लो हमने बॉम्ब का साइज इंक्रीज नहीं किया, तो दूसरा फायदा क्या है कि ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है, लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि आपने कम वजन की मिसाइल बनाई है, तो इट कैन गो लॉन्गर डिस्टेंस बिकॉज उसके अंदर ऑक्सीजन का वेट नहीं है। दूसरा, अगर आपने सेम साइज की मिसाइल में ऑक्सीजन हटा के सिर्फ फ्यूल भर दिया है, आपने यहाँ तक पहले ऑक्सीजन प्लस फ्यूल था, अब सिर्फ फ्यूल है, तो आपकी उतनी मिसाइल में ज़्यादा फ्यूल आ गया, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस तक फ्लो कर सकती है। तो इसलिए इससे डिस्टेंस इंप्रूव हो सकता है और आपकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो सकती है। तो दीज आर द टू मेजर एडवांटेजेस ऑफ द रैमजेट टेक्नोलॉजी। और इससे स्पीड भी इंक्रीज हो सकती है, इट कैन वर्क एट हाई स्पीड्स। ठीक है, बट इसकी एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि बिकॉज इट टेक्स इन एयर while moving in the sky, so it has to be moving initially। जो रैमजेट टेक्नोलॉजी है वो इनिशियली मूविंग होनी चाहिए, तभी वो एयर को इनटेक कर सकती है। अगर स्टेशनरी है, मान लीजिए ये मिसाइल ऐसे रखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ तो ये मूव नहीं कर रही है, मिसाइल मूव नहीं कर रही है, तो एयर ऐसे फ्लो नहीं करेगी आराम से, तो ये काम नहीं करेगी, इट विल नॉट वर्क। तो देयरफॉर रैमजेट टेक्नोलॉजी नीड्स इनिशियल मोशन, इनिशियली उसको मोशन में लाना पड़ता है, ओनली देन इट विल स्टार्ट वर्किंग। तो जनरली क्या होता है, जैसे हमारा कोई प्लेन्स वगैरह है, ठीक है, तो प्लेन में हम लोग यहाँ पे मिसाइल फिट कर देते हैं रैमजेट वाली, और जब प्लेन आसमान में उड़ रहा होता है बहुत बहुत हाई स्पीड में, तब ये मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं। तो ऑलरेडी मिसाइल के पास स्पीड होती है, तो उसी स्पीड से वो एयर को इनटेक करना स्टार्ट करती है और देन द इंजन ऑफ द मिसाइल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये जनरली इसकी डिसएडवांटेज है कि दिस कैन नॉट बी स्टार्टेड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, इट हैज़ टू हैव सम इनिशियल वेलोसिटी फॉर द स्टार्टिंग। यही पूरा लिखा हुआ है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट के बारे में। स्मोक नोजल लेस मिसाइल्स हैं, सॉलिड फ्यूल एयर ब्रीथिंग से रैमजेट इंजन है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मैंने बताई है अभी। रामजेट इंजन ऐसा होता है ना। कुछ रैमजेट इंजन जो होते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड पे काम करते हैं, कुछ हाइपरसोनिक स्पीड पे काम करते हैं। तो जो सुपरसोनिक स्पीड पे काम करते हैं रैमजेट इंजन, उनको बोलते हैं स्क्रैमजेट।
स्क्रैमजेट, तो सुपरसोनिक रैमजेट इंजन, तो उसको हम लोग स्क्रैमजेट बोलते हैं, जो सुपरसोनिक स्पीड पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेजर रैमजेट इंजन होते हैं वो आपके सबसोनिक स्पीड पे ही काम कर पाते हैं। कुछ रैमजेट सबसोनिक स्पीड पे काम कर पाते हैं, मतलब एट अ वेलोसिटी विच इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो जो कुछ स्पेशली डिजाइंड रैमजेट इंजन होते हैं जो सुपरसोनिक पे काम कर सकते हैं, उनको हम लोग स्क्रैमजेट बोलते हैं। स्क्रैमजेट के बारे में यही लिखा हुआ है, इट इज सुपरसोनिक रैमजेट इंजन। फिर इक्विन हर्पिस वायरस, तो ये जो हॉर्सेस को इफेक्ट करता है और कंटेजियस डिजीज है, और इट इज फाउंड मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और केसेस अभी न्यूज में थे तो इसलिए ये दोबारा से न्यूज में आया है। इट कंसिस्ट ऑफ EHV1 और EHV4, तो ये पूछ सकता है डायरेक्टली आपसे कि EHV वायरस जो है वो कौन से एनिमल को इफेक्ट करता है, तो इसमें आंसर होगा हॉर्सेस। ठीक है, फिर हमारा डिफेंस के कुछ टॉपिक्स हैं। एक तो हमारे सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम है, तो ये बेसिकली क्या है, ये इंडियन एयरफोर्स की एक टीम है जो कि एक्रोबैटिक्स करती है एयर में, एरोप्लेन्स के साथ। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, सूर्य किरण मतलब रे ऑफ द सन, और ये एक्रोबैटिक्स करती है। दिस इज द फर्स्ट एक्रोबैटिक टीम इन द इंडियन एयरफोर्स एंड वाज फाउंड इन 82। ये बहुत पुरानी है। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये श्रीलंका में जाके परफॉर्म किया उन्होंने। ठीक है, इन 2001 सूर्य किरण मेड इट्स फॉरेन डेब्यू व्हाइल परफॉर्मिंग इन कोलंबो। अभी ये न्यूज़ में फिर से आई थी। इट इज़ नॉट यूज फॉर एयरफोर्स ऑपरेशन, ये लड़ाई में यूज़ नहीं की जाती, ये सिर्फ कॉम्बैट्स में यूज़ की जाती है, करतब दिखाने के लिए। और ये बेसिकली कर्नाटका से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट यूपीएससी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि ये जो टीम है ये एक्रोबैटिक टीम है बेसिकली, आपके करतब और ये सब स्टंट्स वगैरह दिखाने के लिए। एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज है। रिसेंटली जो है इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें कौन कौन और पार्टिसिपेट कर रहा है, यूएई, यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरेबिया और साउथ कोरिया और बहरीन। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही है। अब ये होगा कब, ये यूएई में होंगे। ठीक है, तो ये बस पता होना चाहिए कि एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज जो है, एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज वो कहाँ हो रही है, यूएई में, और इंडिया की इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ये एनुअल एक्सरसाइज है मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वारफेयर की। इसमें इंडिया के C-17 ग्लोब मास्टर और ये सुकी MKI एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। ये सारी अदर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इंडिया की, जैसे मालाबार एक्सरसाइज, इंडिया यूएस युद्धाभ्यास, जिमेक्स, तो ये सारी आपके लिए है मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक्सरसाइजेज एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज मेमोराइज करनी है कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ होती है और किसके साथ होती है। आपको बस ये बताना चाहिए कि किस कंट्री के साथ होती है और कहाँ होती है बेसिकली। ठीक है, जैसे ऑसी इंडेक्स है तो इंडियन नेवी का होता है और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में। ऐसे ही नोमैडिक एलिफेंट है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है जॉइंट एक्सरसाइज। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपसे एमसीक्यू में स्मॉल क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सरसाइजेज के ऊपर। With this, we conclude the discussion for today's class. I hope you have learned a lot, and if you like this video, please share it with your friends so they also learn something out of it. We will meet next time. Thank you.